तो तेरे को पता नहीं था जब तू मिलने गया दैट यू आर नहीं गोइंग भाई, टू ट्रांसलेट फॉर कैरी मिनाटी? पता नहीं था। अच्छा, यूट्यूब उस टाइम हम केसी नाइस्टैट करके एक बंदा है यूट्यूब हम्म। पे, बहुत हम्म। फेमस व्लॉगर है। हम्म। हिज वीडियो आई वॉच्ड एंड देन आई थॉट हमको भी व्लॉगिंग स्टार्ट करने का मन कर गया। हमको हम्म। लगा कि आई कुड शेयर समथिंग अबाउट माय लाइफ दैट हम्म। पीपल वुड बी इंटरेस्टेड टू लिसन टू। वेरी naively my thought was I want to go to Korea. The reason being is I want to find a Korean girl for myself so I can get married. ये मेरे सोच में था। मेरा आर्मी का बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। लाइक हम्म। आई ऑनेस्टली वांट टू रेकमेंड any guy to हम्म। at least try once. वेलकम टू द एजी सर्च पॉडकास्ट। Hello, hello. Hello. Today I Today have an I have ultra an special ultra guest. special guest. This This person is not person just well is known and unique in every unique in sense, every but sense, someone but who someone who truly truly breaks breaks stereotypes, stereotypes, especially the especially ideas the people ideas have people about have about Koreans. Koreans. I've known I've this known this guy guy since my since time in my Radiant time in Radio International, Patna, International Pati. where I stayed Where for I two stayed for years, 2 years, very short very span, short but span, but our paths our crossed a paths few crossed a times. few times. And back And then, he back was then he was someone who someone sparked who my sparked my curiosity. curiosity. And And recently, I've come recently I've across come his across his sensational sensational content content online, online, and I was and I was honestly in awe. honestly in He has he also has also inspired me to make inspired my me to own make my own content, content, to be to honest. be honest. He's He's popularly known popularly known as the Hindi as speaking speaking Korean, Korean, a content content creator who creator began who his began his journey in journey in 2020 2020 with his with channel his channel Charlie's Kahani Charlie's Kahani and has built and a has built a massive massive impact impact since then. since then. So So today, today on the AG on the Search AG Pod, Search Pod, please please welcome welcome Charlie. Charlie. वाह भाई, क्या इंट्रो है यार, क्या इंट्रो है। मजा आया बवाल। क्या? बहुत बढ़िया इंट्रो दे दिया यार, मतलब ऐसा इंट्रो दे दिए जैसे लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा बन मतलब है। गया। आई मीन यू हैव इंट्रोड्यूस्ड मी सो वेल। अब पता नहीं हम उतना इम्पैक्टफुल है कि नहीं, बट आज आपके साथ, तुम्हारे साथ शुड आई डू आप या फिर मतलब No, no, जैसा हम लोग कैजुअल। let's casual. Yeah, yeah, yeah. Casual, Just ओके ओके whatever you're whatever you're comfortable with, I don't comfortable with, I mind. don't mind. See, ओके I ओके think we I are think we of the are same of the age. same age. हाँ I'm हाँ, I'm we are of 28. this। Right, right. I am 2 years older than you, but Oh, I mean so स्कूल मुझे हमारा मुझे आप बोलना चाहिए ब्रो। मतलब हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम लोग स्कूल साथ में गए हैं, सेम क्लास में थे, तो आई थॉट कि वो वाला मतलब कैजुअल हमारा नॉर्मल स्टाइल में रखे या फिर थोड़ा इंटरव्यू आप ये ना इस स्टाइल में। Good यू डोंट question. माइंड? I don't mind honestly. I think whatever comes naturally to you, bro. I think I prefer that. ठीक है Nothing भाई, made up. मतलब Nothing made up. We don't do हाँ। made up stuff here. तो बढ़िया है भाई, फ्रेंड्स जोन में ही करते हैं, मतलब बढ़िया हाँ, कंफर्टेबल रहेगा फ्रेंड जिस जोन तरह मत से हम कर लोग। देना भाई। तो यार चार्ली, ये हाँ भाई। कॉन्वर्सेशन हम हिंदी इंग्लिश दोनों में रखेंगे, हाँ बढ़िया। ताकि ऑडियंस को समझ आए, क्योंकि मैं सबटाइटल करने वाला हूँ ऑलरेडी। हाँ, थोड़ा एको आ रहा है एको आ पीछे रहा से। है पीछे से। 1 मिनट, एको आ रहा है, 1 मिनट। स्पीकर सेटिंग। मेरे को मेरे ऑप्शन तो को दे रहा है, ऑप्शन तो मिल रहा है, दिस कांट तो बी कौन चेंज्ड भी व्हाइल चेंज रिकॉर्डिंग। ओ ओके 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 भाई, 1 मिनट के लिए फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप करें, मतलब हाँ, ये। स्टॉप कर हाँ सकता स्टॉप हूँ। कर सकते हैं। हाँ। सो या चार्ली, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे और मजेदार बात करेंगे, एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई बात का स्ट्रेस नहीं लेना। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। ऐसे थोड़ा स्ट्रेस तो हो रहा था, मतलब पॉडकास्ट, ऐसे प्रोफेशनल पॉडकास्ट में तो मेरा पहली बार है ना, तो अरे भाई, बस बस बस। अ, जो यार, जो तुमको जानते हैं और जो तुमको नहीं जानते हैं, हम्म और मैंने तुम्हारा काफी कंटेंट देखा है अभी तक, हम्म तो मेरा तुम्हारा सबसे पहला सवाल तुमसे ये है कि people who know you and people who don't know you, what is the biggest misconception they have about you? हम्म ये क्वेश्चन सुन के हम सोचे एक्चुअली, मतलब थोड़ा
because you gave me some questions beforehand and हम्म कभी ऐसा सोचे नहीं थे मतलब क्या लोग मेरे बारे में मिसकंसेप्शन रखते होंगे। हम्म तो इफ आई एम टू टॉक अबाउट माय क्लोज फ्रेंड्स जैसे जो मेरे क्लोज सर्कल में हैं, हम्म अ, ये एक पॉइंट हो सकता है पीपल नेचुरली थिंक कि आई लव रीडिंग बुक्स क्योंकि ये चश्मा और थोड़ा मतलब पता नहीं मेरे वाइब में ऐसा कुछ है कि ये लड़का थोड़ा पढ़ाकू बुकवॉर्म टाइप का लड़का होगा। हम्म बट जब लोगों को हम कहते हैं कि आई you know the most books I've read during the 12 years of my childhood, हम्म probably under 5, like probably 2 3 hoga, 2 3 हम्म books that I've read except for the school materials जो होता है उसके हम्म अलावा जो बुक्स चूज करके हम रीड करते हैं। रेयरली आई रेड बुक्स, आई डिडंट लाइक बुक्स, आई ऑलमोस्ट हेटेड बुक्स, हेटेड रीडिंग। लेकिन अभी तो थोड़ा चेंज हो गया है, बट हम्म। स्टिल लाइक इट्स नॉट, आई एम नॉट लाइक अ बुक लवर काइंड ऑफ गाय। तो ये लोगों को बताते हैं तो थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। इसके अलावा तो या भाई मतलब पता नहीं यार, मतलब लोग से और पूछना पड़ेगा। तो मतलब व्हाट यार तुम, हाँ, सॉरी, गो ऑन गो ऑन। व्हाट डू यू think about me? Like, do you have any like frame या फिर ऐसा कुछ expectations about me? I don't think so, bro. Like, first of all, I try not to have any conception about people I do not fully know, because that is the Mm, wrong way. If I know you very well, right. then that is like, for example, you said about people think that you're very studious because you wear Hmm. specs. Hmm. I think that you come across like that, and I can है ना? see why people would say that, क्योंकि तुम्हारा Right. तुम्हारा ऑरा वैसा दिखता है, मतलब कि यार he's very intelligent, he must be हाँ, studying a lot. तो मैं I right. can see where that comes from, but at the Hmm. same time you can't judge a book by its cover, so there you go. अच्छा, एक और पॉइंट याद आया हमको। हाँ, बोलते बोलते में याद आया, रिसेंटली हम एक रील बनाए थे, मी ईटिंग लाइव ऑक्टोपस इन कोरिया, right, एंड इट वेंट क्वाइट वायरल ऑन द इंटरनेट। yeah. एंड लोग सोचते हैं एज अ, दिस इज फॉर इंडियंस, आई थिंक मोस्ट मेनी Hmm, इंडियंस माइट थिंक अबाउट इट दैट वे कि hmm, कोरिया में लोग अजीब अजीब खाना खाते हैं, है ना? एंड इट्स ट्रू, मतलब hmm. अजीब है इन टर्म्स ऑफ इंडियन Culture. पर्सपेक्टिव, Hmm, कल्चर। hmm. वो अजीब हो सकता है, आई डोंट माइंड। Yeah. लेकिन पीपल थिंक कि हम भी वो नेचुरली सब कुछ खाते होंगे, but I also feel very uncomfortable with many dishes. For example, actually live octopus भी जो हम खाए थे, I tried it for the first time and I was like, भाई ये कैसे खाते हैं लोग? So I had the same reaction that someone else from India would have. तो वो भी एक टाइप का मिसकंसेप्शन हो सकता है। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। लोगों का परसेप्शन डिपेंड करता है कि वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। राइट। आई टोटली गेट दैट, एंड आई एम ग्लैड यू आर एबल टू स्पीक योर हार्ट आउट एंड टॉक या इट थ्रू विद योर ऑडियंस, एंड राइट। मैं तुम्हारा ये भी देखा, अभी तुम वेजिटेरियन डाइट स्टार्ट कर लिए हो। एनीवे, तो यार तुम्हारी शुरुआत इंडिया से हुई है, फ्रॉम फ्रॉम पटना, एंड आई एम वेरी कीन टू लाइक understand what was going on in your childhood days, क्योंकि मतलब मेरी मुलाकात तुम्हारे साथ एक दो बार ही हुई है रेडियन में, और उसके बाद हम लोग, तुम अमेरिका निकल लिए, और मैं पुणे में था उस टाइम पे, एंड वी वर नॉट इन टच, बट वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। आई वुड रियली लाइक टू नो कि तुम्हारा सबसे विविड चाइल्डहुड मेमोरीज क्या था पटना का और स्कूल का, जो तुमको अभी भी याद आ रहा है, याद आता है। आई मीन बहुत सारे हैं, बट सबसे प्रोमिनेंट तो ये है कि आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन बिकॉज ऑफ हाउ आई लुक्ड, लाइक माय हम्म स्किन हम्म कलर एंड ऑल। और ऑलमोस्ट आई वाज ऑलमोस्ट द ओनली फॉरेनर इन पटना ड्यूरिंग माय टाइम, जब हम वहाँ पे थे। ओनली लाइक फेयर स्किन्ड गाय, येलो गाय इन पटना। तो ऑब्वियसली लोग बहुत आई मीन आश्चर्यचकित होते थे जब देखते थे, तो ये बंदा, ये लड़का कहाँ से है, एंड दे फाउंड मी वेरी क्यूट, यू नो।
आंटी लोग जब आती थी तो बाबू तुम्हारा गाल एक बार छुएंगे करके एकदम जो है ना इंडियन आंटीज का जो होता है ये गाल छूना हाँ हाँ एंड आई यूज टू नॉट लाइक दैट क्योंकि यार मेरा गाल दर्द भी देता था और बहुत लोग ऐसे ऐसे करते थे तो हम्म दैट मेमोरी आई हैव बट द मेन पॉइंट इज आई यूज टू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन एक है बिकॉज ऑफ दैट किड्स इन माय स्कूल उस हम्म वक्त सेंट कैरेंस में थे सेंट कैरेंस मॉन्टेसरी स्कूल करके था हम्म वहां पे हमको याद है एक बच्चा आता है लड़का और पूछता है चार्ली व्हाट इज योर नेम तो यू नो इट्स अ वियर्ड क्वेश्चन ना चार्ली व्हाट इज योर तुम्हारा नेम नाम क्या है तो हाँ मेरा नाम जानते हैं बट पूछ रहे हैं मेरा नाम क्या है हम्म तो फ्रॉम दैट व्हाट आई गॉट इज अच्छा मतलब ये मुझसे बात करना चाहते हैं लाइक दे वांट टू हम्म टॉक अबाउट समथिंग दे वांट टू बी हम्म फ्रेंड्स yeah एट दैट टाइम आई डिड नॉट अंडरस्टैंड बट लेटर ऑन हमको समझ में आया कि अच्छा ये लोग मतलब मेरे बारे में जानना चाहते हैं एंड दे आर क्यूरियस अबाउट मी तो yeah दैट्स ऑल बट फॉर मी आई एम वन पर्सन दे आर मैनी पीपल राइट तो थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता था तो दैट इंसिडेंट स्कूल में जो चार्ली व्हाट्स योर नेम दैट हम्म। स्टक विद तुमने कहा यार यू आर द ओनली फॉरेनर एंड इट रियली शॉक्स मी एज वेल क्योंकि तुम मतलब मेरे मेमोरी में भी ऐसा कोई बंदा नहीं था स्कूल में जब तक मैं पटना में एंड आई हैव चेंज्ड मेनी स्कूल्स इन पटना इफ यू आर नॉट अवेयर अच्छा यू weren't इन पटना फ्रॉम द बिगिनिंग I was not in Patna from the beginning. I've changed many schools over a course of 7 8 years. Don't know why. Again, another tangent we can go on, but today we are focusing on you. So as far as I can remember, you were the only dude जो पहली बात तो यार स्टेट छोड़ो दूसरे कंट्री से है और वो भी पटना में है सो आई वॉज वेरी क्यूरियस आई वॉज लाइक ब्रो व्हाट इज गोइंग ऑन दिस इज कूल आई वॉज एक्साइटेड मैं चाहता था देयर वुड बी मोर पीपल who would be coming and studying with us. I wanted diversity, which I got later on in life. I'm very glad. But you're the only one guy, जो एक foreigner था, and as you said, you were getting a lot of attention, good and bad, I reckon. Uh, नहीं overwhelming भी मोस्टली होता गुड ही था मतलब उनके तरफ से गुड था आई था. जस्ट वाज You felt अनकंफर्टेबल overwhelmed, yeah. तो उस टाइम पे तुमको ऐसा नहीं फील हुआ कि यार काश मेरे मेरे और कोरियन फ्रेंड्स भी होते यहाँ पे तो थोड़ा मैं कम फील करता ऐसा ओवरवेल्म्ड उस तरह से तो फील नहीं किए बट आई डिड विश कि आई हैड मोर कोरियन फ्रेंड्स आई डिड हम्म विश कि हम ऐसे जगह जाएं जहां मेरे जैसे दिखने वाले लोग रहें आई राइट नेवर थॉट कि वो लोग यहाँ आए दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली आई नेवर थॉट अबाउट दैट वे या लेकिन हाँ आई ऑलवेज वांटेड कोरियन कंपनी कोरियन फ्रेंड्स and did you ever like talk to your family about this and what was their reaction because for parents that must have been quite a big thing for as a child if you're feeling like a bit left out and stuff Yeah, I don't think I've ever talked about this with my parents. ये बस Mm. मेरे अपने मन में था और ऊपर से it shows my personality as well. बहुत हम ये थे मतलब थोड़ा reserved and Yeah. timid और बहुत शांत. I don't know if I was like that when I met you, but Mm. even around those days, उस time I think we met 11th, 12th, right? Class 11, Ninth, 12th. ninth, 10th. नाइन्थ Mm. अच्छा 9th 10th तो दैट टाइम वाज व्हेन आई वाज चेंजिंग अ लिटिल बिट मतलब मेरा इंट्रोवर्जन थोड़ा सा एक्सट्रोवर्टेड मिक्स वाले स्टेज में था Mm. Mm. तो आई वाज एबल टू टॉक विथ यू आई थिंक एंड वी Yeah. शेयर्ड as well that memory I Yeah, have yeah, 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 yeah. I was you were curious to eat your lunch, bro. yeah you were a very curious person तो वो मेरे लाइक मेमोरी में है Hmm. राइट Great. ठीक है यार मतलब now you have surpassed all that stages of life. अब तो तुम मतलब you have moved back to Korea, right? I don't know which city you are in right now. अभी सोल में है सोल सोल में हो, ठीक है. तो तुम्हारा जो सफर था from Patna, you moved to America. And from America, you moved to Korea and you joined the army, as far as I remember, because I was still like looking at your content. थोड़ा बहुत ही उस टाइम पे भी busy था, but I used to like see what was going on. तो यार, can you like थोड़ा timeline बता सकते हो कि कैसे हुआ, कब तुम अमेरिका गए?
Start with America. How did it happen? हम्म तो पहले तो क्लास 1 से 12th तक पटना में सारा स्टडीज कंप्लीट किए। Hmm. एंड देन 12th में जब थे, आई ऑनेस्टली डिड नॉट हैव एनी थॉट्स अबाउट गोइंग टू कॉलेज। मतलब Okay. मेरे अंदर ऐसा नहीं था कि कॉलेज जाना ही जाना है। Hmm. बट सभी कोई जा रहे थे, एवरीवन वाज गोइंग, एंड माय पेरेंट्स वर आल्सो आस्किंग मी, अब कॉलेज का तैयारी तो करना होगा। Hmm. तो मेरे दिमाग में यही था कि अब बाकी लोग जा रहे हैं और Hmm. मेरा ऐसा भी नहीं है कि आई नो व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। तो कॉलेज सीम्स टू बी अ नेचुरल नेक्स्ट स्टेप। तो बस उतना सोच था। एंड देन वेरी नाइवली माय थॉट वाज आई वांट टू गो टू कोरिया। द रीजन बीइंग इज आई वांट टू फाइंड अ कोरियन गर्ल फॉर माई सेल्फ सो आई कैन गेट मैरिड। ये मेरे सोच में था। ये तुम्हारा पहला थॉट था जो ये तुमने। मेरा पहला थॉट था। सो आई That's वांटेड टू गो interesting. टू अ यूनिवर्सिटी इन कोरिया। Hmm. एंड पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी था एक, उस यूनिवर्सिटी का नाम है हैंडोंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी। Okay. ठीक है? Hmm. एंड इट्स अ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी। Hmm. एंड उस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लाइक कोरियन भैया दीदी लोग होते हैं ना, दे यूज्ड टू विजिट मी एंड माय पेरेंट्स इन Okay. पटना। Wow. एंड आई हैड वेरी गुड i- impression, very good Hmm. impression about those people from that college। तो हमको लगा कि अच्छा उस कॉलेज में अच्छे लोग रहते हैं, Hmm. राइट? तो Hmm. वहाँ मेरा जाने का मन था। बट माय डैड वांटेड मी टू गो टू अमेरिका, क्योंकि वो अमेरिका में पढ़ाई किए हुए हैं। Hmm. एंड ही हैड अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ अमेरिका हिमसेल्फ, एंड ही Yeah. थॉट कि मुझे इंग्लिश और सीखना ज़रूरी है। बिकॉज़ आई न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश बट आई वाज़न्ट Hmm. रियली कॉन्फिडेंट एट इट। मतलब हम अभी भी इंग्लिश में उतना कॉन्फिडेंसी लेवल मेरा ज़्यादा नहीं है। भाई तुम्हारा स्टिल तो अमेरिकन एक्सेंट भी है यार, तुम्हारा तो मैं हाँ, वीडियोस देखा हूँ दैट आई पहले। वर्क्ड ऑन इट, दैट आई हैड टू Really? वर्क ऑन इट। That मेरा is so नेचुरल, good. या भाई मेरा नेचुरल एक्सेंट ये है, लाइक व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू राइट नाउ इट्स मोर ऑफ एन इंडियन एक्सेंट, राइट? तो हाँ, दिस but दिस do इज you have to make that up or it's natural coming to you? this for me is natural. This Okay. accent in which I'm talking right now, this is the natural tone for me, Hmm. but I have to make the American accent. American accent मेरे लिए like makeup करना पड़ता है. That's why I only speak in that accent when I'm with an American who speaks like that. Hmm. Okay. Fair तो enough. सो एनीवेज मेरे पापा चाहते थे कि हम इंग्लिश पढ़ें और मोर अमेरिकन्स के साथ थोड़ा घुल मिल के थोड़ा उनका है ना आइडियाज भी लें, मतलब वहाँ पे Hmm. थोड़ा इंसाइट्स ले पढ़ाई करें। तो एट लास्ट आई अंडरस्टूड एंड आई थॉट ठीक है, मतलब आई डिड नॉट, आई वांटेड टू गो टू कोरिया बट स्टिल आई लेट माय विल डाउन एंड आई Hmm. सेड कि अच्छा पेरेंट्स का बात मानते हैं, और गए अमेरिका में। And thankfully I met my current wife in America, so my Oh. Yeah. expectation broke कि कोरिया में ही मिलेगी, ऐसा कोई बात नहीं है, विदेश में भी मिल सकती है। हाँ. राइट। तो वैसे ही गए अमेरिका में, पढ़ाई किए, इंटरनेशनल स्टडीज था मेरा मेजर। Hmm. बिकॉज वो भी, उसके पीछे भी मेरा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, बस यही Hmm. था कि आई हैव एन इंटरनेशनल बैकग्राउंड, एंड सो आई थॉट इंटरनेशनल स्टडीज ले लेते हैं क्योंकि Hmm. दोनों इंटरनेशनल है। Makes तो sense. वही रीजन था। आई Hmm. स्टडीड, मजा आया, ठीक Hmm. था, मजेदार था। Hmm. Hmm. एंड 3 साल के पढ़ाई के बाद आर्मी गए। Hmm. आर्मी, कोरियन आर्मी में सर्व करना जरूरी होता है हर कोरियन मर्द के लिए हु इज ओल्डर देन 20, 19 और 20 या 21, जब अडल्ट बन जाते हैं। उसके बाद से 30 इयर्स, अप टिल 30, एज 30, उसके बीच में वो आर्मी कंप्लीट करना पड़ता है। तो कितने तो साल सर्व किए तुम? 1 साल? 1 year and 8 months, आई थिंक 1 year 8 months। Okay. Hmm. ठीक है. इतना So सर्व किए। after completing your 3 years of degree in हाँ, America, बीच में you ब्रेक लिए। break लिए. I took a break year, and then I went to the army, served 1 year and 8 months, and then Hmm. COVID hit। COVID आया। Okay. तो कोविड के कारण हम हाफ, मतलब एक सेमेस्टर का एक और ब्रेक ले लिए, क्योंकि Hmm. आई थॉट अभी जाना भी मुश्किल था और जाके भी पता नहीं अब कैसे, सब ऑनलाइन था और ये वो थोड़ा। तो ये अभी तुम अमेरिका में ही हो कोविड के टाइम पे कि नहीं, कोरिया चले कोविड गए थे? में हम आर्मी
जैसे ही आर्मी कंप्लीट करने वाले थे, कोविड हिट हुआ। हुँ, आर्मी ग्रेजुएट करके कोविड वाज़ लाइक एट इट्स पीक। तो ओके। कोरिया में ही हम रहे। हुँ, आई डिसाइडेड कि कोरिया में ही 1 सेमेस्टर और रहते हैं, और दैट वाज़ द स्टेज, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज एंड टाइम फॉर मी टू डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू इन फ्यूचर। And that was the time when I decided कि I want to do music at that time. At that time, I wanted to be a singer. सिंगर बनने का ऐसा चार्ली कुछ था। थोड़ा-सा हम पीछे जाएँगे। आई एम कमिंग टू हाँ, द म्यूज़िक पार्ट। आई हाँ, जस्ट हाँ, वांट टू नो कि जब तुम अमेरिका में थे हाँ, बिकॉज़ यू हैड मूव्ड फ्रॉम पटना टू हुँ, अमेरिका, हुँ, सच अ बिग चेंज इन योर लाइफ। चलो अमेरिकन एक्सेंट तो तुम सीख लिए एंड kudos to you for learning that. It's not easy, especially for an you know Indian speaking accent. अब अमेरिका मूव कर लिए। टेल मी व्हाट वाज द बिगेस्ट कल्चर शॉक यू फेस इन अमेरिका? हुँ। भाई अ, कल्चर शॉक। क्योंकि अ, तुम लिट्टी चोखा खा रहे थे और कोरियन रोटी हाँ, खा रहे थे हाँ, हुँ, पटना में, अब अचानक से तुम अमेरिका चले गए। तो वो राइट, बताओ, थोड़ा सीन थोड़ा क्रिएट करो, क्या राइट। हुआ? अच्छा भाई, पता नहीं यार बाकियों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, बट यू हम्म, नो व्हाट एक्सपेक्टेशन आई हैड अबाउट अमेरिका, एक हम्म, स्टीरियोटाइप मेरे अंदर था। हम्म, हम्म, एंड पता नहीं वो मुझको इतना डराता क्यों था, लाइक आई वाज वेरी अफ्रेड ऑफ दैट। एंड आई आई होप पीपल डोंट फील बैड अबाउट दिस, बट हम्म। आई थॉट अमेरिका में सिर्फ गे लोग रहते हैं, यू नो। लाइक आई यूज्ड टू थिंक कि अमेरिका में मेजॉरिटी गे है। सो इफ आई गो इफ आई गो टू अमेरिका, शायद कोई लड़का मेरे से लाइक हाँ, कुछ या करने का कोशिश करेगा। लाइन मारेगा तुम पे। हाँ, लाइन मारेगा। दैट एक्सपेक्टेशन आई हैड। एंड आई डोंट नो व्हाई भाई, मतलब ये न्यूज़ मीडिया या फिर ऐसा कुछ कहीं पे हम टीवी-वीवी पे देखे होंगे, एंड आई हम्म, थॉट कि यार अब अमेरिका जाएँगे तो हम कैसे, मतलब कॉलेज में लड़का हमसे लाइन मारने लगे तो हम क्या करें? और ऊपर से अगर वो लड़का मुझसे बॉडी-शॉडी में लाइक ऐसा हम्म, हो, लाइक हम्म। फ़ोर्सफुली अगर लाइन मारना स्टार्ट करे तो हम क्या करें भाई? मतलब तो ये ये तुम्हारा सबसे बड़ा फ्राइट था अमेरिका ये में? मेरा सबसे बड़ा फ्राइट था। और अरे उसके बाप बाद ड्रग्स, ड्रग्स के रे! बारे में था, और उसके बाद था गन्स, लाइक गोली हाँ, बंदूक। तो वो तो जब थोड़ा बहुत अमेरि पटना में देख ही लिए होंगे। नहीं भाई, पटना में भी ये स्टीरियोटाइप है। पटना में भी ये स्टीरियोटाइप है। करेक्ट, बट करेक्ट है। आई हाँ, एग्री। असल में सो व्हेन आई वेंट टू अमेरिका, असल में पता चला कि ऐसा नहीं है। मतलब हुँ, ऐसा नहीं है कि हर कोई गे है, हुँ। और ऐसा नहीं है कि हर कोई लड़का लड़का पे लाइन मारता है, और ऐसा नहीं है हर कोई बंदूक लेके मतलब घूमते रहता हाँ, है या हाँ, फिर हाँ, ड्रग्स लेते रहता है, ऐसा कुछ हाँ। नहीं है। हुँ, मतलब वहाँ, और ऊपर से इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन स्टेट्स एज वेल। आई हुँ, वेंट टू अ स्टेट दैट्स प्रीडोमिनेंटली व्हाइट, लाइक व्हाइट, हुँ। मिड वेस्टर्न स्टेट में थे। वहाँ लाइक अच्छा। कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत कम है, हुँ, बट स्टिल पीपल वर वेरी नाइस। मतलब हुँ, आई हैड द बेस्ट एक्सपीरियंस देयर इन आयोवा, था उसका नाम, मिडवेस्ट हुँ, आयोवा। हुँ। बेस्ट एक्सपीरियंस, हमको बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। पीपल वर वेरी नाइस, वेरी काइंड, एंड यस, तो वो एक So that was the experience yeah, for you. that was not more about culture shock, that हुँ, was a frame that I had due to media या फिर कोई इन्फ्लुएंस हुँ, के थ्रू, पता नहीं क्या, बट आई हैड दैट थिंग। एंड अगेन I try to be very careful with how I say certain things, right? क्योंकि राइट। अब इंटरनेट प्रेज़ेंस ज़्यादा होने के कारण अब पहले से थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। एंड हुँ, आई डोंट मीन टू से कि आई डिसरिस्पेक्ट या हेट पीपल दैट हुँ। हैव डिफरेंट वैल्यूज़, बट Yeah, जस्ट you have द to be फियर careful. ऑफ हुँ। बीइंग लाइन मार्ड बाय अ मैन, दैट फॉर मी पर्सनली बीइंग अ That is स्ट्रेट। interesting because मैं मतलब I never thought about this like ठीक है, मतलब अमेरिका में बहुत ओपन लोग हैं, ये पता था हुँ, मेरे को कि हुँ, यार ओपन तो है ही है, मतलब सब कुछ चलता हुँ। है वहाँ पे। सो एक स्टेरियोटाइप जो दैट आई थॉट, एक एक्सपेक्टेशन दैट आई हैड अबाउट अमेरिकन्स, इट्स अ हुँ, पॉजिटिव वन। हुँ, एंड आई थॉट कि अमेरिका में लोग अपना ओपिनियंस एक्सप्रेस करने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल इन क्लासरूम्स ना, जब आपको ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होता है या प्रोफेसर कुछ पूछते हैं, हुँ, तो आई
थॉट कि अमेरिकन्स बहुत लाइक ईगर टू शेयर व्हाट दे थिंक, ऐसे टाइप के होंगे हाथ उठा के, है ना? हाँ, हाँ। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, प्रोफेसर पूछ रहा है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं। तो आई थॉट कि अच्छा, ये सिर्फ मूवीज में ऐसे होता है कि हुँ, अमेरिकन ऐसे थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप के। आई हैड दैट हाँ, एक्सपेक्टेशन कि ये लोग थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट, थॉटफुल, यू नो डीप थिंकर्स, इस टाइप का मेरे पास था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था भाई, मतलब वहां जाके पता चला कि सब सेम है, हम लोग जो डीप थिंकर्स है वो है, हाँ, बट हाँ, जो नहीं है वो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है हाँ। कि अमेरिका सब लोग स्मार्ट है, सब लोग गुड लुकिंग है, सब लोग हुँ। यस, ऐसा थोड़ा होता है, बट वो ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक हम लोग का जो माइंड है वो, अगर तुमको एक चीज़ पता चलेगा अमेरिका के बारे में तो तुम सोचोगे कि सब लोग वैसे ही होता है, और मेरे साथ भी यही हुआ था। एक जोबिन भैया करके थे पटना में, कॉल सेंटर में काम करते थे, ठीक है। अच्छा। और बैंगलोर में काम करते थे, पटना आते थे। तो वो बताते थे कि अमेरिकन्स के साथ जो भी उन कॉल पे बात किए ना, तो उन लोग को कंप्यूटर खोलने नहीं आता है। कंप्यूटर ठीक है। तो मतलब मैकबुक खरीद लिया है, खोलने नहीं आ रहा है कि कैसे खोले। अब हमको लगा कि भाई सब अमेरिकन वैसा ही होगा। तो हाँ, वो भी मेरा अच्छा। चेंज हुआ, तो मतलब हम लोग का दिमाग में ऐसा हाँ, ऐसा घुस जाता है कि एक अगर घुस देख जाता लिए तो मीडिया में चलो कि है। भाई हाँ, खाली हाँ, गन्स तो गन्स सोचेंगे, पर राइट, सब जगह वैसा नहीं होता है। अब इंडिया में भी लोग सोचते हैं कि सब इंडियंस एग्ज़ैक्टली, गंदे हैं, या राइट, एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। वो नहीं ना बात है भाई। इंडियंस हाँ, प्राउड हैं, और क्या बोलते हैं, तरक्की कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, क्या-क्या नहीं हो रहा है। तो वो बात है, हम लोग आई थिंक माइंड में एक बायस बैठ हो जाता जाता है। है, हाँ, बैठ जाता बस उसको उसको सफाई करने की ज़रूरत है। और है। दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड ट्रस्टिंग, नॉट ट्रस्टिंग माय इंस्टिंक्ट्स, नॉट माय हुँ, इंस्टिंक्ट्स, माय थॉट अबाउट समवन या सम प्लेस जस्ट येस। बाय वाचिंग, यूट्यूब या फिर हाँ, न्यूज़ मीडिया। हाँ, दैट इज़ आई थिंक इन्फॉर्मेशन एज में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आदमी पता नहीं कर पाता कि क्या सच है, क्या झूठ है। तो और सोर्स भी, तुमको इतना सारा सोर्स है कि यार राइट। मतलब इट्स क्वाइट माइंड बॉगलिंग। अब तो तुम अमेरिका चले गए थे, वहाँ का एक्सपीरियंस तुमने गेन कर लिया, और अभी तुम बता रहे थे कि तुम कोविड के टाइम पे इतना बड़ा डिसीजन तुमको लेना था कि हुँ, मैं क्या करने वाला हूँ अपने लाइफ में। हुँ। और उस टाइम पे ही तुम आर्मी भी जॉइन कर लिए थे, ऑलरेडी हाँ, कर चुके हाँ, थे, ऑलरेडी राइट? जॉइन कर चुके थे। 2015 में कॉलेज गए, 2018 में आर्मी जॉइन की। ठीक है। पहला पहला सवाल है कि आर्मी से कुछ मोमेंट्स शेयर करने का, मेरा मैं जानना चाहता हूँ कि आर्मी में क्या हुआ? सबसे पहले तो मेरा आर्मी का बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। लाइक हुँ, आई ऑनेस्टली वांट टू रिकमेंड एनी गाय टू हुँ, एटलीस्ट ट्राई वंस, एक बार तो ट्राई बनता है। हुँ, और वो इसलिए क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। हुँ, आप कभी, स्पेशली बीइंग अ साउथ कोरियन, नॉर्थ हुँ, कोरिया में तो पता नहीं, बट साउथ हुँ, कोरियन में एटलीस्ट वी आर ए डेमोक्रेटिक फ्री सोसाइटी। तो हुँ, ऐसे लाइक हायरार्की, स्ट्रिक्ट हायरार्की में जीने का एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता है। लाइक यू हैव योर पेरेंट्स, यू हुँ, ओबे योर पेरेंट्स ऑब्वियसली, बट ऐसा हुँ, नहीं होता है आमतौर पे कि योर पेरेंट्स आर लाइक मिलिट्री लीडर्स की तुम हुँ, करो नहीं तो तुम्हारा गेम खत्म, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मिलिट्री में ऐसा है कि आपका स्ट्रिक्ट हायरार्की है, जो हुँ, ऊपर वाला बोलता है वो नीचे वाले को करना पड़ता है। ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट्स स्ट्रेसफुल एंड पेनफुल, मतलब हुँ, कोई नहीं चाहता है, very small amount of people probably like that hierarchy, but हुँ, आमतौर पे बहुत स्ट्रेसफुल होता है ऑब्वियसली, हुँ, बट एट द सेम टाइम इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड रिगर। जैसे हुँ, किसी चीज को स्ट्रगल करने का जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो जीत के निकलने का, वो हुँ, बहुत बिल्ड होता है। तो आपको ऐसा ऐसा चीज कराने मिलेगा जो आपको करने का मन नहीं हो, लाइक यू डोंट लाइक टू डू इट एट ऑल, बट यू हैव टू डू इट बिकॉज यू आर इन द आर्मी। आप हुँ, अगर बाहर सोसाइटी में हैं, आपको कोई कुछ बोलेगा करने के लिए, आपको मन नहीं है, तो आप जस्ट कह सकते हैं नो आई डोंट वांट टू डू इट। हुँ, बट वहाँ ऐसा सिस्टम ही नहीं है, यू हैव टू डू इट। तो वहाँ हमको ये सीखने मिला कि ज़िंदगी में काफ़ी बार ऐसा होता है जब यू डोंट वांट टू डू सर्टेन थिंग्स, या, but in order to grow and succeed you have to build a strength and practice discipline
कि आप वो करके निकले ताकि आप अगले स्टेज में जा सकें। हुँ। तो वो एक बहुत बड़ा एक थीम था वहाँ पे जो हम सीखे। बीइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन, वो तुमको हाँ, आर्मी बताया कि अगर ग्रोथ करनी है तो जो चीज़ नहीं भी करना चाहते हो वो भी करो, तभी ग्रोथ होगा। वैसा 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 माइंडसेट तुम्हारा बन गया आर्मी से, बन है ना? गया। हाँ, अब आई मीन टू गिव कॉन्टेक्स्ट क्योंकि बहुत सारे हाँ, लोग तो शायद हाँ, एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। हाँ, हाँ। कोरियन आर्मी ऐसा जगह है आपको जाना ही जाना होता है। बीइंग अ कोरियन गाय हू इज़ हेल्दी लाइक हुँ, आपको बेसिक हेल्थ हुँ, एनालिसिस करना पड़ता है। बहुत बेसिक है। देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज़ लाइक वेट, हुँ, बीएमआई कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। राइट। वो आपका एक सर्टेन लेवल अगर हो जाए तो यू आर एलिजिबल टू गो एंड यू हैव टू गो। नॉट हुँ, एलिजिबल यू हैव टू येस। कंपल्सरी है। हुँ, तो आप जाते हैं आर्मी में और आपको रैंडमली वो प्लेस करते हैं, पोस्ट देते हैं। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एयर फ़ोर्स या फिर नेवी के लिए वो अलग एग्ज़ाम होता है, बट हुँ, अपार्ट फ्रॉम एयर फ़ोर्स एंड नेवी मोस्टली इट्स जस्ट रैंडम। आप या तो हुँ, आर्टिलरी बेस में जा सकते हैं लाइक टैंकर्स वगैरह हुँ, हुँ। या फिर आपको टेक्निकल साइड ब्रिज-व्रिज वगैरह बनाने का कुछ है, ऐसे जगह में तुम या कौन फिर से आप उसमें थे? हम आर्टिलरी में थे। कोरिया आर्टिलरी। में मेजॉरिटी आर्टिलरी है, हुँ, मेजॉरिटी। ठीक तो है। आर्टिलरी में थे एंड उसके बाद आपको सो आर्मी में बेसिकली बेसिक ट्रेनिंग होता है, आपकी हुँ, फिज़िक बढ़ाने के लिए बेसिक एक्सरसाइज़ जो कि हर दिन होता है, राइट? ठीक है। दैट्स हुँ, लाइक वेरी बेसिक एंड नथिंग टू स्ट्रेसफुल हुँ, पुशअप्स या फिर ऐसा कुछ है हुँ, ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हुँ, बट एक मिलिट्री ट्रेनिंग होता है जो स्ट्रैटेजिक मिलिट्री ट्रेनिंग होता है, क्योंकि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में इट्स लाइक अ ब्रेक राइट नाउ, द वॉर इज़ नॉट ओवर येट, वी आर इन वॉर, इट्स जस्ट अ ब्रेक। तो दैट्स व्हाई दे स्ट्रैटेजाइज़ एवरीथिंग कि अगर इन केस नॉर्थ कोरिया वाले कुछ अटैक कर दिए। तमाशा हुँ, किए, हुँ, तो डायरेक्ट कैसे-कैसे करना है, हर जगह हुँ, स्ट्रैटेजी बना हुआ होता है और उसी चीज़ को रेपिटिटिवली हम लोग ड्रिल करते हैं। और वो ड्रिल हर दिन नहीं होता है, वो लाइक पर सेमेस्टर टाइप का 3 हुँ, महीना, चाहे 4 महीना हुँ, में 1 बार ऐसे हुँ, थोड़ा लॉन्ग टर्म में 1 बार होता है, बट इट्स अ हुँ, वेरी हार्डकोर ट्रेनिंग। जैसे विंटर हो गया, तो विंटर सर्वाइवल कैसे करेंगे? ठंड के हुँ, मौसम में बाहर निकल के वहाँ पे 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता ट्रेनिंग करते हैं। तो उस टाइप का ट्रेनिंग आई नेवर वांट टू डू अगेन। वो तो बहुत टफ है, बट वो एक हो गया, बेसिक हो गया, एक हुँ, स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग हो गया और हुँ, उसके अलावा डे टू डे में आप क्या करेंगे? हुँ, दे मेक यू डू थिंग्स, कुछ ना कुछ करवाते हैं। जैसे हुँ, साफ-सफाई हो गया या हुँ, फिर टैंकर है ना, तो हुँ, टैंक का रखवाली हो गया। ऐसे बेसिक चीज़ जो एकदम खाना-पीना बोरिंग है ना, बनाना, कुकिंग। खाना कुकिंग के लिए भी अलग वो होता है, पोस्ट होता है। हुँ, कुकिंग वाले शेफ़ लोग अपना अलग होता है। हुँ, हुँ, तो वो बेसिक चीज़। तो बेसिकली आर्मी बहुत बोरिंग होता है। अगर आप बड़ा पिक्चर देखें ना, तो हुँ, ऐसा नहीं है कि रोज़ बंदूक मार रहे हैं, रोज़ मतलब ऐसे हुँ, ड्रिल कर रहे हैं, हुँ, ऐसा नहीं है। हुँ, वो सेमेस्टर वाइज़ होता है। बाकी दिन जस्ट रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया या फिर हुँ, सफाई पोछा हो गया या फिर आप अपने इनमेट्स के साथ रिश्ता बनाना। गेम्स भी खेलते हैं, फुटबॉल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये हुँ, सब करते हैं। तो दैट्स दैट। तो काफ़ी उम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इज़ वेरी बोरिंग टाइम। आपको हुँ, सोचने का टाइम मिलेगा, कुछ करने का टाइम मिलेगा एंड दैट्स व्हाई हुँ, पहले कोरिया में क्या होता था, क्योंकि ये सीनियर्स एंड हायरार्की होता है ना, तो हुँ, सीनियर वाले जूनियर वाले को बहुत तंग करते थे रैगिंग एंड बोलते हैं ना उसको। रैगिंग टू द हाँ, एक्सटेंट कि वायलेंस तक हो जाए हो जाए, मतलब हाँ। हाँ। तो वो बहुत खराब सिस्टम है, वो तो खराब सिस्टम है बट थैंकफुली मेरे ज़माने में वो काफ़ी ख़त्म हो चुका था। तो हुँ, दैट वाज़न्ट देयर बट स्टिल आप जब एक जगह बंधे हुए हैं, हुँ, आपको कुछ करने के लिए नहीं है, तो हुँ, लड़ाई-झगड़ा रिश्ता बनते हुए हो ही जाता है। मतलब वो हाँ, वो होना तो ही है। होना होता है। तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है आर्मी में। हुँ, ट्रेनिंग ये सब तो करते-करते आपका बॉडी बिल्ड हो जाता है। बट आदमी के साथ रिश्ता बनाना दैट्स अ हुँ। डिफिकल्ट थिंग। यू सेड यू वुड रिकमेंड दिस टू एवरी, मतलब हर आदमी को तुम रिकमेंड करोगे कि एक बार तो भाई आर्मी में जाओ तुम, हुँ, है ना? हुँ। पर इट्स पर ये बिकॉज़ ऑफ दिस एस्पेक्ट। हाँ, बट ये खाली कोरिया ही कंपल्सरी मैंडेटरी करता है, मेरे को जहाँ राइट, तक लगता है। राइट, राइट, राइट। इंडिया में नहीं है। मतलब आई वुड लव टू गो ऑनेस्टली, मतलब मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस सुनने के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं तो जाऊँ यार 1 साल के लिए, क्योंकि
क्योंकि वो एक्सपीरियंस बहुत ही डिस्कम्फर्टेबल रहेगा, बट बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा उसमें। But also bhai, I think it's uniquely Korean because हुँ, you don't choose to go to the army. You have to हैव go to टू the गो टू army. द आर्मी, You राइट। have to. So it's a very different mindset. हुँ, आप अगर आप चूज़ कर रहे हैं, तो you have हुँ, a very different attitude, right? या And you could maybe come out whenever you want. आप निकल हुँ, भी सकते हैं, हुँ, बट यहाँ पे आप नहीं निकल सकते हैं। आप अगर निकलेंगे तो आपको जेल हुँ, भेज देगा। When I was in the army, it was 1 year हुँ, and 8 or 9 months ऐसा हुँ। था। थोड़ा कम होते गया, अभी 1 year and 6 month फिक्स हो गया है। तो अगर इसको देखा जाए एक पर्सपेक्टिव से, तो एक एक तरीके का बहुत ज़्यादा बड़ा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है तुम्हारे लिए हुँ, आर्मी। उसके हुँ, बाद तुमने डिसीजन लिया जो भी तुम किए आगे। हुँ। क्या बोल सकते हैं ऐसा कि लाइफ चेंजिंग था तुम्हारे लिए आर्मी? हाँ, हाँ। हुँ, लाइफ चेंजिंग था एंड लाइफ चेंजिंग इट्स वेरी हार्ड टू पिन पॉइंट कि या ये एक ऐसा मोमेंट था। इंसिडेंट हुआ हुँ, दैट्स व्हाई ऐसा हुआ। हुँ, इट वाज़ अ या वेरी स्लो बिल्ड अप। मतलब हुँ, इवन ड्यूरिंग कॉलेज जब हुँ, यूनिवर्सिटी में थे, तब हुँ, से ही मेरे दिमाग में था। सो हुँ, एक बंदा था जो हमको आके बोला था यू शुड ट्राई बिकमिंग अ सिंगर। तो हुँ, दैट्स व्हाई आई हैड इन माइंड कि अच्छा मे बी ऐसे ही मे बी करते-करते आर्मी में गए थे। And then by the time I graduated from army, I had to make a decision क्योंकि अब तो 1 साल बाद तो कॉलेज भी खत्म हो जाएगा, फिर तो हुँ, मतलब कोई सेफ्टी नेट नहीं है, अब तो कुछ ना कुछ I need to decide what to do in हुँ, life. हुँ, So that's why honestly army was a good time for me to think about this हुँ, issue. Of हुँ, army, how much it directly affected me, I don't know, but हुँ, it gave me the time to think about it. तो वो उस टाइम में हम डिसाइड किए कि अच्छा ओके एटलीस्ट आई शुड मेक अ डिसीजन एंड ट्राई टू परस्यू इट राइट। हुँ। अब सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये तो पता नहीं बट हुँ। एटलीस्ट ट्राई करते हैं। So, okay, great. Let's quickly jump into your time when you started your content journey. पहले तो let's establish the fact that you always or you decided that you wanted to be a singer, right? हम्म, कि तुमको म्यूजिक में घुसना है। हम्म, अब वो कैसे घुसना है वो तुमको पता नहीं है, बट घुसना है, हाँ, हाँ। हाँ, तो वॉक अस थ्रू तुम्हारा जो प्रोसेस था कि तुम कंटेंट में कैसे घुस गए, फिर म्यूजिक भी बना रहे हो, अभी अभी भी बना रहे हो तुम म्यूजिक। हम्म, तो हेल्प वो थोड़ा एक वॉक थ्रू दे दो कि क्या कैसे हम्म, हुआ स्टार्ट उसका जर्नी का। बढ़िया है भाई। सो लाइक यू सेड आई हैड नो आइडिया कहाँ से कब लाइक हम्म, कहाँ से कैसे स्टार्ट किया जाए इसका हम्म, कोई आइडिया नहीं था। आई हम्म, डिडंट हैव एनी singer friends or anyone who did music professionally. हम्म, My मेरे पापा की दीदी मेरे आंट क्या कहेंगे आंटी हुई, हाँ। वो बुआ अ, बुआ होगी बुआ। हुआ हाँ। वो ओपेरा सिंगर है मतलब अच्छा। शी इज अ प्रोफेशनल सिंगर बट हम्म, अब वो तो मेरे से काफी ज्यादा लाइक मतलब एज में बहुत ज्यादा हम्म, डिफरेंस है और हाँ हाँ। अभी तो जनरेशनल गैप भी और बहुत टाइम्स भी चेंज हो गए तो व्हाट आई एम सेइंग कि कोई नहीं था मेरे आसपास कोई नहीं था हम्म, तो बस आई प्रेड प्रे किए कि इफ दिस इज व्हाट यू वांट मतलब गॉड इफ हम्म, दिस इज व्हाट यू वांट फॉर मी टू डू देन गिव मी समथिंग लाइक गिव मी अ डायरेक्शन या फिर ऐसा हम्म, कुछ एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटी जो भी हो एंड देन आई शेयर्ड दिस विद मेनी पीपल शेयर करना हम्म, स्टार्ट किए पापा के साथ मम्मी के साथ शेयर किए कि हम्म, आई हैव दिस विल कि आई वांट टू ट्राई समथिंग इन दिस म्यूजिक हम्म, बिजनेस बस उतना ही एंड उस टाइम इतना भी नहीं था कि अब इसको करना ही करना है क्योंकि बस ऐसा था कि हॉबी टाइप का कम से कम हम्म, कुछ स्टार्ट करें पेरेंट्स को भी उतना ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं किए कि मतलब हम्म, अब हम म्यूजिशियन ही बन जाएँगे। तो ऐसे स्लो स्टार्ट था। हम्म, फिर मेरे पापा एक दिन एक आदमी से इंट्रोड्यूस करवाए वो बोले कि ही वर्क्स इन जैसे कॉन्सर्ट वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, तो इवेंट, वो हाँ। हाँ, इवेंट ऑर्गेनाइज़र एक है, हम्म, जो काफ़ी इस फ़ील्ड में एक्सपीरियंस्ड है, राइट? हम्म, तो आई सेड ठीक है, आई विल ट्राई दिस। तो वो पीरियड था जब व्हेन आई वाज़ टेकिंग दैट ब्रेक, राइट? कोविड के हम्म, कारण जब कोरिया में 1 सेमेस्टर ब्रेक लिए थे, तो हम्म, उस टाइम कोरिया में थे। उसी टाइम हम वो एक्सपीरियंस लिए फॉर 3 इयर्स। सो आई वर्क्ड एज़ एन इंटर्न अंडर दैट पर्सन
who was an Um, event organizer, and nice. I thought I'd learn something, right? Mm, And it was the worst experience that I could have. वो वहाँ पे जाके ऐसा-ऐसा काम किए जो इट वाज़ नथिंग रिलेटेड टू इवेंट, mm, बट ऐसा था जैसे कि हम उनका पर्सनल लाइक assistant. असिस्टेंट टाइप का काम कर रहे हैं, हाँ. राइट? Mm, सो आई मीन अगर देखा जाए तो ये भी बिल्डअप एक्सपीरियंस है, mm, पेशेंस एंड ऑल कैरेक्टर mm, बिल्डिंग व्हिच mm, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, mm, बट म्यूज़िक या फिर इससे रिलेटेड कुछ सीखने नहीं मिला। सो mm, आधा साल तो ऑलमोस्ट लगा कि बर्बाद हो गया। एंड एट दैट टाइम आई थॉट टू माई सेल्फ, अच्छा यूट्यूब उस टाइम हम केसी नाइस्टैट करके एक बंदा है यूट्यूब mm, पे, बहुत mm, फेमस व्लॉगर है। mm, हिज वीडियो आई वॉच्ड एंड देन आई थॉट हमको भी व्लॉगिंग स्टार्ट करने का मन कर गया। हमको mm, लगा कि आई कुड शेयर समथिंग अबाउट माय लाइफ दैट mm, पीपल वुड बी इंटरेस्टेड टू लिसन टू। mm, And because I don't know what to do with music, yeah. but I still know I want to do music, Mm, and I could at least share what I'm learning and doing throughout my life as I mm, become a musician or singer, right? mm, So that thought था, and then I shared this with that event guy, वो जो मेरा बॉस mm, था। जब mm, शेयर किया कि ऐसा मेरा विजन है, I want to start a YouTube channel and mm, I'll do it in Hindi because no mm, one is doing it in Hindi, and mm, plus someone who is as fluent as me, mm, तो it's a very unique selling point. mm, एंड ये आदमी हमको इतना डिस्करेज किया ना, बोला कि डू यू हैव अ क्लियर रोड मैप एंड अ क्लियर ब्लूप्रिंट फॉर व्हाट यू वांट टू डू? डू यू हैव अ कॉन्सेप्ट? मतलब mm, यूट्यूब अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या mm, कॉन्सेप्ट है तुम्हारा? सिर्फ हिंदी बोल के क्या कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा। इस mm. टाइप से थोड़ा मतलब नीचे गिराने का कोशिश किया मेरे को। हाँ, हाँ, तो हाँ, उस टाइम इतना हम मतलब मतलब वो हो गए, डाउन हो गए थे, हाँ. और लगा कि हाँ यार, मतलब हम तो कुछ जानते भी नहीं हैं, यूट्यूब कैसे करेंगे? Mm, तो वैसा ही था, एंड देन आई डिडन्ट स्टार्ट एनीथिंग। आई जस्ट प्रैक्टिस्ड स्पीकिंग टू द कैमरा, एट लीस्ट थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, बट कुछ कुछ नहीं हुआ। एंड देन वापस गए कॉलेज। कॉलेज जाके 1 साल बढ़िया से कंप्लीट किए, एंड ड्यूरिंग दैट 1 ईयर mm, I took classes that I was really interested in, मतलब mm, जैसे आर्ट्स जैसे एक्टिंग हो गया, mm, एक्टिंग क्लासेस एंड म्यूजिक वोकल लेसन्स, mm, म्यूजिक प्रोडक्शन क्लास, ये सब mm, लिए एज एन इलेक्टिव, मतलब जो साइड में होता है ना पढ़ने के mm, लिए। mm, वो सब लेके थोड़ा-सा इंटरेस्ट बिल्ड किए, एंड आई फाउंड कि आई एक्चुअली लाइक डूइंग दिस। सो mm. और मेरा बढ़ गया, मतलब Confidence. सॉलिड हो गया। हाँ, Mm. कॉन्फिडेंस नहीं, इट्स मोर लाइक I really want to try Enjoy. this. Mm, Enjoy, right? mm, I mm, confirmed my interest in this field. mm, And then वो वापस लाए कि भाई भले ही मेरे पास कॉन्सेप्ट तो नहीं है, I don't know what I would do when I start my YouTube, mm, but at least I could do something, right? I could make mm, a video. मतलब वीडियो तो कोई भी बना सकता है, mm, एटलीस्ट वो अच्छा जाए चाहे नहीं जाए, कम से mm. कम अपलोड तो कर सकते हैं ना। एकदम. तो आई थॉट कि यार अगर ये फ्लॉप भी कर गया, Mm, तो कोई ना कोई देख के बोलेगा ये बंदा ट्राई किया पर mm. फेल कर गया। अगर Mm. इस बंदे जैसा हम करेंगे तो हम भी फेल करेंगे। दे कैन लर्न समथिंग एट लीस्ट, Yeah, राइट? yeah. और अगर हम सक्सीड किए तो दे कैन आल्सो लर्न कि अच्छा ऐसे करने पे सक्सेस किसी को मिल भी सकता है। Hmm. सो पॉजिटिवली सोच के हम स्टार्ट किए, अच्छा ठीक है अपना जर्नी रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, एंड दैट्स हाउ द यूट्यूब जर्नी स्टार्टेड। Hmm. स्ट्रैटेजिकली अगर बोले तो इट वाज़ देयर वाज़ अ स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट कि अगर हम यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, Hmm. तो इफ इट वर्क्स आउट वेल, then I'll have a fandom already Hmm. around me. People Hmm. would be following me, and I would have certain amount of followers by Hmm. the time I learn how to make music or sing properly like a professional singer. Hmm. So that was the plan. And that seemed to have worked out well. So I mean, really, it's I mean, grateful होने की बात है, blessing है, mm, and no, I it took really you a while, but it right, did it like it's not I think the whole idea about how glamorous it looks to right. to an outsider versus how much work goes into it is Right. something that is not shared a lot right now at any platform क्योंकि तुम्हारी जो मेहनत तुमने जो लगाई होगी उस पे वो वो लोग नहीं देखेंगे ना लोग तो प्रोडक्ट देखेंगे तुम क्या बना के दे Hmm. रहे हो
हम्म, तो आई थिंक you've done a wonderful job. अभी अभी थैंक यू तक जो तुम जो भी लैंडमार्क क्रॉस किए हो, भाई। and I hope you keep growing, bro. Honestly. थैंक यू सो मच भाई। आई मीन ऑनेस्टली हमको नहीं लगता है कि आई एम स्टिल ग्रोइंग और आई एम Yeah, of स्टिल course, of इम्प्रूविंग course. Hmm. एंड honestly I feel like the recognition that I have right now on the Hmm. internet, it's a little क्या कहते हैं उसको, ओवर measured, like it's Hmm. not, जैसे I don't feel like I deserve that much attention, right? I don't Hmm. feel like I am at that level कि इतना recognition हमको मिले. I feel like I've Hmm. gotten a lot early recognition. You know Is what I that mean? is that the imposter in you that's saying that? पता नहीं भाई, but it doesn't hinder me. ऐसा नहीं Hmm. है कि उसके कारण I'm not able to do things, Hmm. but I'm aware, like Hmm. self-aware कि this is a you know when you buy Lays, like Yeah. chips आप खरीदते Hmm. हैं, Hmm. तो आपका शुरू में पैकेट इतना मोटा रहता है, Hmm. बट रियल कंटेंट इतना रहता है, राइट? Hmm. आई फील लाइक दैट्स मी राइट नाउ। मतलब अभी थोड़ा सा लोग मुझे ओवर लाइक वो मेरा जानना चाहें। पैकेज Hmm. सोच रहे हैं कि इसके ये ये पैकेज पूरा भरा हुआ है, बट इन फैक्ट व्हेन यू Hmm. ओपन इट, इट्स स्टिल दिस मच। एंड मीनिंग कि आई हैव मोर टू डू, मोर टू शो, मोर टू इम्प्रूव, Hmm. बट हाँ, बट इट्स इन अ हेल्दी वे, नॉट इन अ बैड वे। Hmm. हेल्दी वे कि अच्छा, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट Hmm. एंड मेरे को उस कारण से काफ़ी सारे अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रहे हैं। बट आई Hmm. डोंट वांट टू बोस्ट एंड बी प्राउड कि हाँ यार, Hmm. मतलब क्या है, हम तो सब लोग जानते हैं हमको। ये स्टेज नहीं है। नहीं, ये स्टेज आना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ दैट आना भी स्टेज नहीं कैन चाहिए, राइट, that राइट। can become quite negative, because हुँ, obviously you're getting a lot of love and support from people. People are liking your stuff and you're हुँ, grateful for it. और राइट। यार पता नहीं होता है क्या कल हो जाए, राइट? हाँ, प्यार के साथ डांट भी मिलती है लोगों से, राइट? हुँ, तो हुँ, you should always have that humble heart कि हाँ यार ठीक है, it's okay, I'm enjoying it, and I think you have that already, so I don't need to tell you. मैं ज्ञान नहीं दूंगा तुमको, तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तो या ठीक है, अब तुम कंटेंट क्रिएटर बन गए हो, अब तो गाना भी गा ही रहे हो साथ हुँ, साथ। मैंने तुम्हारा लास्ट सॉन्ग देखा था, साहिबा हुँ, करके, है ना? साहिबा, हाँ, हाँ, नाइस। सो अब क्या, व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ इन टर्म्स ऑफ music projects? Are you going to राइट, release more songs, or are हुँ, you going to be doing more of the content that you're creating? What's happening? राइट। सो मैंने ये सोचा इस साल के लिए क्या प्लान है, लाइक मूविंग Hmm. नेक्स्ट। Hmm. एंड सो अप टिल नाउ आई वाज डूइंग कवर सॉन्ग्स, राइट? क्योंकि आई डोंट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस म्यूजिक। मैंने Hmm. कभी म्यूजिक पढ़ा नहीं और आई डोंट हमको नहीं आता है उस वो चीज़ करना। Hmm. आई लव टू सिंग, Hmm. बट आई डोंट नो हाउ टू मेक म्यूजिक। आई हैव नेवर डन इट बिफोर। सो Hmm. कभी ना कभी ट्राई करना चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम फॉर मी राइट नाउ। Hmm. व्हाट्स राइट फॉर मी राइट नाउ इज आई कीप इम्प्रूविंग माय वोकल्स up Hmm. to the level that I'm at least, you know, satisfied. Hmm. And then I want to work with other people who make music, who are good at it. जैसे producers हो गए हैं, जो लोग वो craft के लिए मेहनत किए हैं Hmm. already. Hmm. Hmm. And I worked on my craft. So I want to collaborate. So that's one plan कि लोगों के साथ collaborate करना, music original music बनाना, not Hmm. covers. But या वो तो गोल है, बट स्टिल आई विल स्टिल बी मेकिंग कवर्स एज़ वेल, वो तो होते रहेगा। बट एज़ अ लॉन्ग टर्म गोल वो प्रोजेक्ट है। एंड अनदर थिंग इज़ आई लाइक टू शेयर माय जर्नी, मतलब Hmm. मेरा अपना थॉट्स एंड आइडियाज़ शेयर करना पसंद है। एंड Hmm. व्हाट आई हैव लर्न्ड इन माय लाइफ एंड व्हाट वर्क्ड फॉर मी एंड Hmm. व्हाट हैज़ हेल्प्ड मी, दैट आई फील लाइक आई हैव एन ऑब्लिगेशन कि लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि दे कैन आल्सो एन्जॉय एंड लिव द बेस्ट ऑफ व्हाट Hmm. दे, राइट? Hmm. तो इसमें भाई पैसा नहीं होता है, दैट्स द Hmm. डाउनसाइड इस Hmm. चीज़ में। यू डोंट गेट पेड टू शेयर योर थॉट्स, Hmm. राइट? लेकिन एट लीस्ट यूट्यूब ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना दिया है कि एट लीस्ट यू गेट एन अपॉर्च्युनिटी टू गेट पेड टू शेयर
your thoughts and Mm, to do what you do just day to day, right? mm. तो एटलीस्ट वो तो बढ़िया है, बट इट्स नॉट, यू नो, इनकम के मामले में दिस नॉट अ वेरी गुड प्लेस टू बी। तो या थैंक्स फॉर ब्रिंग दैट अप। आई थिंक जो अगर देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे उनको भी पता चलेगा कि यार दिस क्रिएटिव इंडस्ट्री इज नॉट एज ग्लैमरस एज इट लुक्स, राइट? नहीं, पैसे का जो तुम बात कर रहे हो, वो लाइक व्हाट इज मनी टू यू राइट नाउ? कैन यू एक्सप्लेन दैट व्हाट happens in the YouTube space in terms of money? राइट, आई मीन यूट्यूब पे आप अनलेस यू आर गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यूज रेगुलरली, Mm, मंथली, तब आपका जाके बेसिक, लाइक, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे हैं। फॉर mm, एग्जाम्पल आई इन कोरिया, आई एम गेटिंग, mm, इफ आई एम गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यूज, देन मे बी बेयरली सिंगल पर्सन के लिए यहाँ पे लिविंग सस्टेन हो सकता है, mm, लाइफस्टाइल, राइट? बट mm, हैविंग अ फैमिली, इट्स इम्पॉसिबल। mm. तो बेयरली जस्ट बाय डूइंग यूट्यूब आपको पैसा कमाए तो समझ लीजिए नहीं हो पाएगा। एंड राइट, दैट्स द सिचुएशन। और बट पॉजिटिवली सोचा जाए तो आपके पास अगर अच्छा ऑडियंस है, आप यू Mm, आर गेटिंग रेगुलर व्यूज, mm, तो ब्रांड्स अप्रोच यू एंड ब्रांड्स वांट टू वर्क विथ यू, प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, एंड फॉर दैट यू गेट पेड अ लॉट ऑफ मनी, अच्छा mm, खासा पैसा मिल जाता है उससे। mm, बट अनदर डाउन साइड इज यू डोंट गेट दैट एवरी टाइम एवरी डे, mm. मतलब कभी कभार मिलेगा, कभी एंड कभार प्रोजेक्ट बेस्ड है ना ब्रो, राइट? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। बेस्ड है। हाँ, हमको तो यार कभी-कभार मतलब 3 महीना 4 महीना में 1 बार मिल जाए, हाँ। ऐसा टाइप का होता है। हम्म, तो इट्स वेरी अनसस्टेनेबल, यू नो, रिलायबल। अनरिलायबल। तो अगर लोग बोलते हैं भाई हम भी कंटेंट बनाना चाहते हैं, पूछते हैं व्हाई डू यू वांट टू मेक कंटेंट, तो बोलते हैं पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। भाई तो जल्दी पैसा कमाना है चाहते हो तो मत करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है भाई। मतलब इससे बढ़िया पार्ट टाइम जॉब करो, चाहे कहीं, यू नो, डू समथिंग एल्स। कॉल सेंटर में लग जाओ, हाँ, वो अमेरिकन दैट्स लोगों का कंप्यूटर फिक्स कर दो। अ लॉट बेटर भाई, अ लॉट बेटर। सही में पैसा के मामले में, इफ यू आर हम्म, टॉकिंग अबाउट मनी, या अर्निंग मनी। या बट हाँ, हम्म, कौन? नहीं है, बट अगेन ये तो अभी राइट नाउ का शॉर्ट टर्म का हम बात किए, लेकिन हम्म, आई डू बिलीव लॉन्ग टर्म कि दिस इज वैल्यूएबल इनफ, हम्म, वर्थवाइल इनफ टू स्पेंड टाइम एंड एफर्ट। या and also how we see money is very different from how, you know, like everyone has a different perception about money. क्योंकि पैसा तो पैसा है यार। I just think it just gives you access to things, access to food, access to, it's just a, मतलब अगर उसको, अगर पैसे को ही ज्यादा वैल्यू देने लग गए तो फिर क्रिएटिविटी नहीं आएगी मेरे हिसाब से। हाँ, अगर अगर तौलने लग गए पैसे से तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। बट या आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, इवन आई थिंक आई कंसिडर्ड फॉर अ लिटिल बिट कि हाँ भाई बहुत पैसा मिलता होगा। हम्म, बहुत ही, ये तो मतलब बचपन का, मेरा टीनेज का, मैं उस समय लोगन पॉल को देख रहा था और अच्छा। केसी नाइटस्टैट को भी देखा। एनीहू, यू मेंशन्ड कि यार तुम्हारा, योर your vision is to collaborate with some great artists, हम्म, music producers हो गए, singers हो गए. Can you mention some names that comes to your mind in terms of, maybe it might happen, you never know, but अगर तुम्हारा कोई dream project है in terms of music collaborations नहीं that भाई, you would really like ऑनेस्टली to work with? अभी तक तो नहीं है, मतलब Hmm. यू नो, लुक एट, जैसे फेमस नेम्स तो लेने के लिए ले सकते हैं, ले बट सकते हैं, इट, हाँ। हाँ, it doesn't interest me like to हाँ। work with someone, and it's so far fetched, you know, हम्म, बहुत हम्म, इतना दूर है, and I don't know anything about that industry या फिर anything about it, हम्म, कि हम्म, हमको उतना attachment नहीं है। Right now, हम्म, honestly, I know people who are in this industry who are close to me, जो हम्म, independent artists हैं, right? हम्म, Working with them is a lot more joy for me than, हम्म, you know, like aiming for working with, the, yeah, हाँ, the work, big ones. ऑफ आई मीन अपॉर्चुनिटी मिले भाई तो व्हाई नॉट, राइट? व्हाई नॉट? बट ऐसा नहीं है कि बिकॉज दे आर फेमस आई वांट टू वर्क विद देम। एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए ना भाई, कि मतलब हम्म, अगर एड शीरन हो गया या फिर अरिजीत सिंह हो गया या फिर अरमान मलिक हो गया, इन लोग के साथ अगर काम करना चाहते हैं तो काम करने का कारण होना चाहिए ना, कि आई हैव अ सॉन्ग आइडिया या फिर ऐसा कुछ स्पेसिफिक कि हाँ उनके साथ मैच करेगा।
बट देयर इज नथिंग लाइक दैट एज ऑफ नाउ. आई डोंट हैव दैट एबिलिटी इनफ कि हम वो पिक्चर ड्रॉ कर सकें. Mm, राइट नाउ मेरे दिमाग में इतना ही है कि आई वांट टू बी एबल टू सिंग बेटर mm, एंड वर्क विथ पीपल अराउंड मी हु आर वेरी स्किलफुल. ऐसा नहीं है कि वो mm. लोग मतलब खराब है. दे आर वेरी टैलेंटेड एंड वर्किंग विथ देम alone is a blessing for me. No, that's great. Yeah. तो अभी कोई नया गाना लिख रहे हो? नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट नहीं है अभी. हम्म। हाँ, अभी तो ऐसा कुछ नहीं. और एक और क्वेश्चन था यार, मैं भूल गया पूछना। हम्म. तुम्हारे लिए फॉलोअर्स क्या है? ओ What are followers for you in भाई. whatever sense you want to take this? हम्म. फॉलोअर्स फॉलोअर्स हैं. लाइक फॉलोअर्स मीन्स फॉलोअर्स. वो फॉलो करते हैं आपको. राइट. Hmm, hmm, एंड मी बीइंग समवन टू बी फॉलोड hmm, पुट्स मी इन अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि hmm, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं hmm, उनको सही जगह लेके जाए. राइट. मतलब हम उनको डुबाना नहीं चाहते हैं. हम hmm, चाहते हैं कि जो मेरे ऐसा सोच सकते हैं इजी वे में. हाँ, जैसे आप यू नो जैसे हमको याद है बचपन में क्रिकेट खेलते थे. राइट. hmm, 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 मोहल्ले में हम लड़का सबको बच्चे सबको बुलाते थे, भाई क्रिकेट hmm, खेलोगे, क्रिकेट खेलना है, hmm, चलोगे. hmm, तो दोज पीपल हु से यस टू यू बिकम योर फॉलोअर्स. राइट. वो आपके पीछे पीछे आते हैं कि ये बंदा मुझे ले जाएगा क्रिकेट खेलने के लिए. hmm, तो आई थिंक ऑफ इट लाइक दैट. लोगों को साथ में ले चल रहे हैं एक जर्नी में. और hmm, वो जर्नी अच्छा होना चाहिए, अच्छे जगह पे एंड होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई exactly. थिंक. सो दैट्स व्हाई माय ओनली पर्पस इज टू डू माय बेस्ट so people where they go with me they Hmm, enjoy and they get the most out of it. और मेरा message very simple है. For this year what I want to share with people is hmm, you are worth more than what you think. That's what I want to share. Right. लोग अक्सर जब हम खुद के बारे में सोचते हैं अपने बचपन के बारे में आई यूज टू टेक माई सेल्फ वेरी लो डाउन. सोचते थे हमको ये नहीं आता है वो नहीं आता है, आई एम hmm, नॉट बेटर दिस दैट. मतलब नेगेटिवली सोचते थे खुद के बारे में. एंड दैट वुड मेक मी वेरी रिजर्व्ड एंड इंट्रोवर्टेड. कुछ ट्राई नहीं करना, हिम्मत नहीं आना, इस टाइप का. hmm, बट लेटर व्हाट आई फाउंड इज दैट नहीं, ऐसा ये सच नहीं है. लाइक दिस इज hmm, my you know wrong perception about myself. So that is what I want to tell people who watch my content. Right. Okay. What you think about yourself might not be true and you hmm. are more than what you think. That's what I want to say. So Ah, yeah, I totally resonate with that, to be honest. That's a beautiful line. एक और सवाल, just we are approaching towards the end. Thank you for giving so much time. Really appreciate that. Uh, चार्ली के लिए हैप्पीनेस क्या है? What is oh, happiness for Charlie? wow, bhai, you are asking big questions. Yeah, big It is a big question, but you can just say it simply because that's the storytelling way of saying it. Saying simple things. simple things. Bhai, you're asking the most difficult question. And I enjoy these questions actually. Mm, Matlab, the reason why I said yes to talking to you and doing a podcast like this is I thought कि you're very curious person. आप curiosity आपके पास है और आप अंदर की चीजों को बाहर निकालने का क्षमता है आपके पास. And I enjoyed those conversations. हैप्पीनेस के बारे में हम सोचे हैं and what I've at least up till now what I've concluded is what I think, right? What I think should align with what I do and it should align with what I believe. So my belief, my soul, mind and body should be in alignment. mm, अगर वो है तो like that's the life that I am happy with, right? And it sounds very easy, mm, लेकिन it's very difficult. mm, Easy example, अगर आप जॉब में हैं, right? mm, आप काम नहीं करना चाहते हैं, mm, दैट्स योर माइंड. बट आप काम नहीं करना चाहते हैं बट आपका बॉडी काम कर रहा है. mm, सो इट्स नॉट इन अलाइनमेंट, राइट? mm,
तो आई डोंट वांट दैट स्टेट। राइट। अगर आप किसी के लिए काम, फॉर एग्जांपल हम गाना अच्छा गाना चाहते हैं, हम्म। तो हमको गाना प्रैक्टिस करने के लिए टाइम स्पेंड करना पड़ता है। हम्म। बट आई डोंट लाइक स्पेंडिंग टाइम, राइट? हम्म। हमको वो प्रैक्टिस करने में मज़ा नहीं आता है ऑब्वियसली। हम्म। हम्म। But I know that in order to get better, I हम्म। need to practice. तो I do the practice. हम्म। तो in that case, भले ही हमको करने का मन तो नहीं है, but हम्म। I know that I want to do this, so I need to do this. तो हम्म। in that case, it's in alignment, right? हम्म। तो that's happiness for me, No, that's a good way to put it, to be honest. right? And soul wala part, like हम्म। it's the most important, what I हम्म। believe to be true. हम्म। And that's where spirituality comes in. Matlab, my belief in God and the हम्म। creation, हम्म। the story of creation, that needs to align with what I think, needs to align with what I do. That's it. No, that's amazing, bro. Like अगर जिनको समझ आ रहा होगा वो समझ जाएंगे, और जिनको नहीं आ रहा होगा वो कोशिश करेंगे, शायद पॉज करें। क्या बोला वो थोड़ा सा अलाइन होना चाहिए, शरीर, आत्मा और मन। मन। तीन चीज अगर अलाइन हो जाए तो भैया आपको मिल गई हैप्पीनेस। ठीक है। हाँ, हाँ। तो ठीक है भाई, मतलब सब कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ वही अलाइन करने का। I have you seen that meme? You know, uh, love, love your job. Don't love your जॉब या job. Job your love. I just hope ये वैसा meme ना बन जाए, but Hopefully not, but hopefully not. you never know what Carrie Minati can do, हम्म। so hopefully not. अच्छा, उसने स्टार्ट किया है। नहीं भाई, he's a meme guru. I think he can राइट, roast anything and anyone in the राइट, most राइट। craziest way. I think he's phenomenal. मतलब वो जो He's करता yeah. है वो भाई, did I tell you I met Carrie Minati when no. भाई एक बार मैंने कैरी मिनाटी से मिला, हम्म। एंड आई वाज अ ट्रांसलेटर बैक देन, यूट्यूब भी नहीं कर रहे थे, हम्म। ट्रांसलेटर थे। एयरपोर्ट पे गए थे उसका ट्रांसलेशन करने, चाइना हमको जाना पड़ा था, चाइना में मिले। तो और कोरियन में ट्रांसलेट कर रहे थे? हाँ, नहीं, हिंदी टू कोरियन, राइट? वो ओके। पबजी करके एक गेम है ना, हाँ हाँ, बैटल पबजी, हाँ ग्राउंड, हाँ, सब बैटल खेला हुआ है ग्राउंड भाई। है क्या? हाँ, हाँ। उस गेम का वो होस्ट करने के लिए आया था। ओके। तो उनके लिए हमको ट्रांसलेट करना था, एंड आई मेट दिस गाय। तब तक हमको पता नहीं था यूट्यूब के बारे में, उतना हमको पता भी नहीं था हाँ ये क्या इल्यूमिनाटी फेमस है नहीं है। एक छोटा-सा बंदा आता है, हाँ हाँ। और लाइक ही हैड वन असिस्टेंट और समथिंग, उससे बात की एंड आई टोल्ड हिम हमको हिंदी बोलने आता है, आपके लिए इंटरप्रेट करेंगे ये वो। एंड ही हाँ। वाज़ अ वेरी नाइस चिल गाय। हम्म। बात की बढ़िया से, एंड देन आई वाज़ लाइक पता नहीं यार, ये कोई पूछा हमसे कि भाई वो यू नो अबाउट कोरियन बंदा कोई हमसे पूछा। तो हम बोले हम्म। यार कोई होगा, मतलब है, हाँ। यूट्यूबर है हम्म। ना? बाद में देखे सम 10 मिलियन फॉलोअर्स की क्या, हम्म। तो दिमाग उड़ गया भाई, फोटो ले लेना चाहिए था उसके साथ। तो तेरे को पता नहीं था जब तू मिलने गया दैट यू नहीं गोइंग टू भाई, ट्रांसलेट फॉर कैरी मिनाटी? पता नहीं था, एकदम पता नहीं था। चलो कोई नहीं, मतलब मिल तो लिए अब, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा कंटेंट देख ही लेगा वो भी। हाँ, होपफुली। एनी फाइनल थॉट्स ब्रो बिफोर वी क्लोज? थॉट्स भाई, इट वाज अ प्लेजर टू सिट डाउन विथ यू एंड चैट। और सच में ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूट्यूब है और पॉडकास्ट है और आपके साथ कर रहे हैं। जेन्युइनली आई लाइक योर क्वेश्चंस, और ऐसा लगा, आई डोंट नो इफ आई could give a satisfactory answer, and people who's watching, I don't know if they can fully understand what I mean, थोड़ा confused भी हो सकते हैं, hopefully not, but in any case questions, ऐसे questions हमको बहुत पसंद है, and to talk about these, honestly I could go for hours और deep बात कर सकते हैं, but yeah, final conclusion ये है, बहुत मजा आया, अच्छा लगा हमको, and I hope those who are watching, है ना, those who are listening to my story, mm, I want them to know that life is good, and हाँ, मजे लीजिए। I hope you have the best life, और thank you so much for giving so much love and interest for myself and my content. Thank Thank you so much, man.